Jai Hind to all the amazing learners. Welcome to your own online sessions of English grammar. So dear students, as you know that in present topic of English grammar, we are going through the topic of one and only, yes, tenses. So as you know dear student, our starting portion is a general recap, means it is a revision so that you can recall whatever you have studied till now in this topic. So one by one we will see what we have studied till now from the starting in the topic of tenses, right? So please open up your minds and try to recall whatever you have studied. I know you all are best and you remember everything. So one by one we will see what we have studied till now. So we studied first of all what? Yes, the definition of tenses. The tenses indicate the time of action or an event. Tenses हमें क्या बताता है? Tenses हमें उस time के बारे में बताता है जब एक action या फिर एक event हुआ था या हो रहा है या होगा. Right, very good. Now in that we first saw about the forms of tenses. We came to know the 12 forms of tenses. Yes, you can recall it one by one. We saw about the simple tenses in detail, simple past tenses, simple present tenses, simple future tenses, structure along with example for your all clear understanding. I hope that you all are clear with the videos, you all are very much clear with the topics that you have been taught till now. Moving forward, in the next class we saw about the continuous tenses, present continuous, past continuous and future continuous, right dear students? Yes. Then we saw about what? Yes, perfect tenses in all the three classes, past, present and future. Total 9 tenses has been covered. Then in the last class only we covered about the perfect progressive tenses or the perfect continuous tenses. Both is same only. In that we studied about the present perfect continuous tenses in detail, structure along with examples, then past, and similarly we studied about the future perfect continuous tenses. Now in today's lecture I had promised you that I will tell you about what? Yes, I will tell you about making up of negative sentences in perfect continuous tense as well as interrogative and negative interrogative sentences along with an important note, because last lecture was getting very lengthy, so we kept this portion for the upcoming lecture. So without wasting much time, dear student, as I always say you, sit relaxingly, open your eyes and your mind and just enjoy this audio-visual class. Everything you will come to know by just watching this audio-visual class. So we are going to see about the negative sentences in perfect continuous tenses. मतलब कि perfect continuous tenses में जो हम negative sentences बनाते हैं उसका format कैसे होता है. Now I'm going to ask you one question, that what does you mean by negative sentences? Can you answer it? Yes, I know that you all are revising this in your mind. Negative sentences means that a sentence which consists of not or for any form of not, जो एक नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता है हमें, राइट. तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे. इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है. पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस ऑफ और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है. जैसे कि अभी हम एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सामने ही, ठीक है, ताकि हमें सब कुछ हमेशा के याद रह जाए. फॉर एग्जांपल पहले क्या है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, ही, शी, दे, वी, आई. तो आपको ये पता ही है, किसी पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं. तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे आई ले रहे हैं, ठीक है, आई हमने लिख लिया. उसके बाद आई के साथ हैज़ लगता है कि हैव लगता है डियर स्टूडेंट? यस, आई के साथ हमेशा हैव लगता है. वेरी गुड. उसके बाद हमने क्या लिख लिया? हमने लिख लिया नॉट, ठीक है. उसके बाद क्या है? जब परफेक्ट और कंटिन्यूस साथ में आते हैं तो क्या अपने आप लग जाता है? यस, बीन लग जाता है. वेरी गुड. और जब कंटिन्यूस टेंसेस होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग लिख लेते हैं, ठीक है. स्टडी हमारा वर्ड है और उसका आईएनजी फॉर्म. स्टडिंग
अब सिंस ऑफ फॉर है, ठीक है। तो सिंस में आप लिख दो सिंस 3 o'clock, ठीक है, फुल स्टॉप। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, मैं कब से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 3 o'clock से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक दैट यू हैव गॉट द आइडिया हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट सेम आई और हैड लग जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउन हो, ही शी दे इट हो, उसके साथ हमेशा हैज़ और हैव। पास्ट टेंस में क्या लगता है, हैज़ और हैव नहीं लगता बल्कि हैड लग जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, नॉट वैसे ही है, बीन फिर से साथ में आ जाएगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूअस अगर लिखा है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा ही होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, कहते हैं ना, वैसे रख लीजिए आप, ठीक है। सिंस, सेम और 3 o'clock, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख लेते हैं। सब्जेक्ट और विल या शाल। आई के साथ मैंने क्या बताया था, जनरली हम शाल यूज़ करते हैं, आई शाल। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, ठीक है, क्योंकि हैव तो लगना ही लगना है फ्यूचर में। परफेक्ट की बात हो रही है तो हैव या हैड का कोई ना कोई फॉर्म एच वर्ड तो लगेगा ही लगेगा, राइट। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट में हैज़ और हैव लगाया एच वर्ड के तौर पे, परफेक्ट में हमने हैड लगाया, वैसे ही फ्यूचर में तो फ्यूचर जहाँ लिखा है वहाँ विल शाल आ जाएगा, और क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसलिए हैव रहेगा, हैड नहीं रहेगा। फोकस करिएगा, जनरली क्या रहेगा, हैव। आई शाल हैव नॉट बीन स्टडिंग since 3 o'clock, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ओके। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद द मेकिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। One time if you want you can record all this syntax in your classwork copy, okay। Now let us quickly move and see about interrogative and negative interrogative sentences in perfect continuous tense। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट। यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है जो सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछ रहा हो और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क लगा हो, राइट। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो नॉट के साथ क्वेश्चन फॉर्म में रहते हैं, जो एक नहीं का मतलब देते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन फॉर्म में रहते हैं। यस, वेरी गुड। और परफेक्ट के साथ हमारा क्या यूज़ होता है, एच वर्ब यूज़ होता है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो। कंटिन्यूअस के साथ क्या यूज़ होता है, वर्ब का एनजी फॉर्म होता है, और दोनों जब साथ में आते हैं तो क्या यूज़ होता है, बीन यूज़ होता है, राइट। सो दिस ऑल यू हैव created a clear picture in your mind, okay। Now let us proceed in this topic. So first we will see one by one the syntax or the structure of making interrogative and negative interrogative in perfect continuous tenses. First let us see about the imperfect continuous tense making in interrogative and then in negative interrogative sentences. First we will see about the interrogative sentence, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो पहले आ जाता है, तो यहाँ पे भी हैज़ और हैव या एच वर्ड वो पहले आ जाएगा। तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैज़ और हैव था, ठीक है। तो अब आप क्या लेना पसंद करेंगे, यू कैन चूज़ डियर स्टूडेंट, लेट अस टेक हैज़, ठीक है, हमने हैज़ ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, हैज़। रीना, एक नेम ले लेते हैं, रीना, ओके, रीना। बीन, हैज़ रीना बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो कौन सा वर्ब हम लेंगे, कोई वर्ब, डांस ले लेते हैं, राइट। डांस का आईएनजी फॉर्म, हैज़ रीना बीन डांसिंग। अब यहाँ पे सिंस या फॉर, लास्ट सेंटेंस में हमने क्या लिया था, सिंस ले लिया था, फॉर ले लेंगे। फॉर ऑब्जेक्ट 1 आवर। This was our interrogative sentence in present perfect continuous. Now let's see about negative interrogative sentences in the same category. It has or have will be used, means helping verb will be coming first, then your subject, then not, been, verb का ing form, since, for और object। इसका भी एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। has
ओके हैज़। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, तो अभी हम एक क्या ले लेते हैं, हैज़ शी ले लेते हैं और हैज़ ही ले लेते हैं। चलिए ही ले लेते हैं, ठीक है। हैज़ ही नॉट बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म में हम एक वर्ब लेंगे और उसके आगे आईएनजी लगा देंगे, तो क्या लें, ईट ले लेते हैं, ठीक है। ईटिंग फॉर 15 minutes, ओके। हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग फॉर 15 minutes, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, तो फॉर उसके बाद 15 minutes, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। अब हमारा पास्ट सेंटेंस भी ऐसे ही बिल्कुल रहेगा इंट्रोगेटिव, बस यहाँ हैज़ की जगह क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यस, हैज़ की जगह पास्ट में हैड हो जाता है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, ओके। हैड हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव में हैड ही बीन ईटिंग फॉर 15 minutes, ओके, ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव, हैड ही बीन ईटिंग फॉर 15 minutes। और हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, हैड ही नॉट बीन ईटिंग फॉर 15 minutes, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेम फॉर्म में देख लेते हैं, शाल और विल, जैसा मैं आपको पहले बताई हूँ कि शाल और विल पहले आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि शाल आ गया, शाल हमने पहले लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, राइट। इंट्रोगेटिव है तो हो जाएगा शाल आई बीन ईटिंग फॉर 15 minutes, मैं जो हूँ खुद 15 मिनट से खाना खा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्या देख लेते हैं, शाल और विल, दूसरा सेंटेंस के तौर पे एग्जांपल लिख लेते हैं, विल, ओके, विल। अब उसके बाद सब्जेक्ट में हम क्या कोई दे ले लेते हैं, ओके, विल दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, प्ले और उसका आईएनजी फॉर्म प्लेइंग सिंस 5 PM, ओके। क्वेश्चन मार्क, विल दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो आई होप दैट यू आर क्लियर हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन perfect continuous tenses, yes. Now let's move to our most important part in which we discuss the note, right, like we discuss in all the lectures of tenses. So here also there is a note for you. We use since to mention the point of time and we use for to mention the period of time. Since हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे आपने शॉप्स के बाहर देखा होगा सिंस 1990s, राइट। तो अगर पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हो 1990s 5 o'clock एक्सेट्रा, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। पर हम फॉर का यूज़ कब करेंगे, जब हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर 5 years, फॉर अ नाइट, ठीक है। तो जब हम पीरियड के बारे में बात कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर, और जब हम कोई पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विथ ऑल दिस। सो डियर स्टूडेंट, with this only we have completed our topic of tenses in all the forms, including the introduction. We have discussed about the structure of making the affirmative and imperative sentences, like मतलब कि जो हम affirmative sentence के बारे में पढ़े थे, main example जो पढ़े थे हम, वही affirmative sentence है और उसी से related वैसे ही imperative sentence बनता है, उसमें कोई changes नहीं होता है। फिर negative sentences के बारे में पढ़ा और उसके साथ ही हम लोगों ने interrogative और negative interrogative के बारे में पढ़ा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरैक्टिव ऑडियो विजुअल क्लासेस में। एंड आई नो दैट यू ऑल आर सो स्मार्ट, you all have grasp everything very perfectly, and if you have any doubt, I always say, you can ask me in comment box, you can ask me in doubt session. Don't forget to maintain the notes, because the tenses is the topic which is important for you all in all classes every time. It is the essence, it is the most important part of English grammar. So record it, have a
clear notes of it with you so that you can never forget this topic, and whenever you need it you can open the copy and recall your points about the tenses. And don't forget to mark your attendance with your name, your class. If you like the lecture, do tell me. If you have any problem, you can also tell me about the same. So with this only, I end up this session, and I would again urge you all to stay safe, stay home, avoid moving out of their houses for unessential things. Always cover your face with mask when you move out. Carry a sanitizer, because this is the very important situation and we all are warriors. We have to come up with this situation like a warrior. Keep studying, keep learning. Your teachers are here to make you understand everything, even in this pandemic situation, through the medium of online classes. Stay well, stay blessed. Have a good day. Thank you. Bye bye.